Hello students, we are continuing MCQs based on case scenario. This case scenario is on economic value added. So let us say that are given in this scenario. So we are given that the chief executive officer of a company Tata Steel Limited wants to measure the performance of company on the basis of economic value added generated by the company. The financial accountant of the company has provided the following information of the company for a current year. So data given is in rupees in lakhs. So equity share capital of rupees 10 each, 15% preference share capital rupees 10 each, reservation surplus 15% debentures, 10% non-trade investments, nominal value rupees 100 lakhs, but value is 140 here. Land in buildings which is held as investment, then advance given for purchase of plant and machinery, capital work in progress, underwriting commission not yet written off. ये आपको डिफरेंट आइटम्स दी हैं बैलेंस शीट की, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स. देन अर्निंग पर शेयर इज गिवन, टैक्स रेट इज गिवन, बीटा फैक्टर इज गिवन 1.586, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन. So then different MCQs are given. So number one, we have to calculate net operating profit after tax of the company. Then second, they are asking calculate weighted average cost of capital of the company. Number third, they are asking calculate economic value added of the company. तो स्टार्ट करते हैं पहले. नंबर वन इज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. So this data of a company given. So this is Tata Steel Limited. So number one MCQ. We have to calculate net operating profit after tax. उस केस में आप देखिए आपको अर्निंग पर शेयर मेंशन की है. अर्निंग पर शेयर होती है प्रॉफिट फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर. तो इट मीन्स फ्रॉम अर्निंग पर शेयर यू विल कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. इट मीन्स आपको रिवर्स मेथड अप्लाई करना है. प्रॉफिट फॉर इक्विटी आ जाएगा, ये होता है पैक माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड. तो इसमें अब प्रेफरेंस डिविडेंड ऐड बैक कर रखी है. ये बन जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. इसको बना लीजिए आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट. इट मीन्स नाउ दिस इज पीबीटी. अब उसमें आपको ऐड बैक करना है इंटरेस्ट ऑन डेट. बिकॉज वी वांट टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ये होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज. तो इट मीन्स ये पीबीटी है प्लस इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा. तो ये आपका बन जाएगा ईबीआईटी. और एक इसमें आपको मेंशन की है 10% नॉन क्रेडिट इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसकी इनकम हम कंसीडर नहीं करेंगे. तो वो आप माइनस कर लीजिए. माइनस इनकम ऑन नॉन क्रेडिट इन्वेस्टमेंट्स. इट मीन्स नाउ दिस विल बी अवर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. बट वी वांट टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. उसको फिर आप बना लीजिए इनटू 1 माइनस टैक्स रेट. तो स्टार्ट करके हैं बंदा भाई. तो नंबर वन लेट अस सी व्हाट इज प्रॉफिट फॉर इक्विटी. दैट इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. क्या था आपको देखो मेंशन किया है रुपीज लैक्स में है. सो लेट अस टेक अमाउंट रुपीज इन लैक्स. So earning per share is given. So EPS is given to be our 16 multiply by number of equity shares. Equity share capital आपको mention किया है 400 lakh divided by 10. So this will be 40. प्लस कर लीजिए preference dividend. Preference share capital is 15% preference share capital 200 lakhs. So it will be 200 into 15%. So this is profit for equity एंड प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड आपने ऐड कर दिया है. तो इट मीन्स दिस विल गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो ये पैक आ जाएगा आपका. तो लेट अस सी हाउ मच इज दिस. दिस इज 640 प्लस 30. तो 670. तो नाउ वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स. तो दिस इज पैक 670. उसको डिवाइड कीजिए 1 माइनस टैक्स रेट. दिस इज 30%. So this is 670 divided by 0.7. This is 957.143. So now we will add back interest plus interest on debt means debenture minus income on non-trade investment. So this will get EBIT.
earnings before interest and tax means operating profit. So let us see how much is that. So the bankers आपको mention किए हैं 1600 into 15% is our interest. So this is 1600 into 15%. So this is interest on the venture 240. Then income on non-trade investments आपको nominal value दी है 100 lakhs 10%. So this will be calculated on face value 100 lakh into 10%. So this is coming 10. तो ये माइनस हो जाएगी. So this will be our EBIT. So 957.143 plus 240 minus 10. This is 1187.143. So now we can calculate NOPAT. So this is equal to EBIT and इसको आप बना लीजिए आफ्टर टैक्स. तो दिस इज 1187.143 into 1 minus tax rate 30% into 0.7. So this is coming 831. तो अमाउंट है जो रुपीज 831 lakhs. फिगर आपको चल रही है लैक्स में. So which option is correct? Answer is option number C. So can we have second MCQ? In this we have to calculate the weighted average cost of capital of the company. So let us see what is the formula of weighted average cost of capital, which is also denoted as KO. इसमें आप देखेंगे कैपिटल में आपको मेंशन किया है इक्विटी है, प्रेफरेंस है, डिबेंचर्स हैं. तो इट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डेट इनटू वेट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इनटू वेट ऑफ प्रेफरेंस प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू वेट ऑफ इक्विटी. पहले सभी की कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं. कॉस्ट ऑफ डिबेंचर मीन्स डेट. डेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 50%. लाइफ जैसे मेंशन नहीं किया है, इसको बना लीजिए आप आफ्टर टैक्स 1 minus 0.3. This is 10.5%. Then cost of preference share. So this will be equal to जो भी आपको इसका रेट ऑफ डिविडेंड दिया है 15% प्रेफरेंस शेयर. So this will be 15%. तो कई के लिए आपको रिस्क फ्री रेट दी है, बीका की है, मार्केट की रिकरिंग दी है. सो कैपम मॉडल वी कैन अप्लाई. सो RF प्लस बीका इनको RM माइनस RF. So risk free return is given 9.85. Beta is given 1.586. So into RM is our 16.25 minus risk free return 9.825. So this will be our cost of equity. So 9.85 plus so this is 16.25 minus 9.85 into 1.586. This is 10.15. So cost of equity is coming 20%. So now we can calculate weighted average cost of capital. तो उसके लिए देखते हैं वेट्स कितने हैं अब आपके. तो आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं. तो लेट अस राइट सोर्स ऑफ कैपिटल. कैपिटल में आप देखिए पहले आपके पास हैं 15% डिबेंचर्स. सो अमाउंट है आपका रुपीज इन लैक्स. डिबेंचर्स का अमाउंट आपको मेंशन किया है जिस इज 1600 lakhs. Then we have 15% preference shares. So amount of preference share capital is 200 lakhs. Then we have equity. इक्विटी में जैसे आपको कंसीडर करना है इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्वेंट सरप्लस और एक आपको मेंशन की है फिक्टिशियस एसेट विच इज अंडर राइटिंग कमीशन. ये माइनस हो जाएगी. तो इक्विटी शेयर कैपिटल इज 400, रिजर्वेंट सरप्लस इज 220. सो 400 प्लस 220. अंडर राइटिंग कमीशन है आपकी 20 lakhs. So equity is 600. So we get a total capital. So total capital is 2400 lakhs. तो आप वेट कैलकुलेट कर सकते हैं या डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. सो वेट्स आर कमिंग 16/24, यानी 2/24, 6/24. कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने कैलकुलेट की है. कॉस्ट ऑफ डेट की 10.5, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस 15%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20%. तो मल्टीप्लाई करके वेट से सो यू विल गेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. 24 देखो आपका एलसीएम आ जाएगा 16 into 10.5. दिस इज 168 प्लस 15 into 2 30 प्लस 6 into 20 120. तो टोटल इज डिवाइडेड बाय 24. तो 168 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 24. तो दिस इज 13.25%.
This is the cost of a capital of a company. You can see which option is correct. So in this case, so answer is option number A. So next we have third MCQ. So we have to calculate economic value added of the company. So like I say, what is formula of economic value added? Formula is net operating profit after tax. जैसे आपने देखा नोपैक में हमने जो नॉन आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की उसकी इनकम या एक्सपेंस हमने कंसीडर नहीं किया है. इट मीन्स इसी तरीके से हम लिखे हैं कैपिटल लिखे हैं ऑपरेटिंग कैपिटल एंड ऑन दिस कैपिटल वी अप्लाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिससे एवरेज इकोनॉमिक वैल्यू आएगी. तो कई बार आप देखेंगे क्वेश्चन में दो तरह के कैपिटल होते हैं. एक तो है नॉर्मल आपका कैपिटल एम्प्लॉयड. इट मीन्स जो आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये को हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पर. कैपिटल एम्प्लॉयड में आ जाएगी आपकी इक्विटी प्लस डेट प्लस प्रेफरेंस. बट समटाइम्स वी आर गिवन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, कुछ आपके एसेट्स हैं जो आपने इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के लिए की हैं. देन वी हैव टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग कैपिटल फॉर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पर्पज. ऑपरेटिंग कैपिटल तो यही पॉइंट अच्छा है इस क्वेश्चन में. ऑपरेटिंग कैपिटल की अब डेफिनेशन मिल जाएगी टोटल कैपिटल जो आपने कैलकुलेट किया है और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. उसमें से हम माइनस कर लीजिए नॉन ट्रेड जो एसेट्स हैं आपकी और वी कैन से इन्वेस्टमेंट्स. लाइक से व्हाट आर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स. तो उसमें आपको जो को मेंशन किए हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स दी हैं लैंड एंड बिल्डिंग विच इज हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट तो ये भी आउटसाइड बिजनेस मानी जाएगी. सेकेंड एडवांस आपने दिया है फॉर परचेज ऑफ प्लांट ये भी आपकी बिजनेस में यूज नहीं हो रहा है अभी जैसे नॉन ट्रेड. देन कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस ये होता है जैसे कोई ऐसे की कंस्ट्रक्शन चल रही है जिसे नॉट रेडी टू यूज तो ये भी आपकी आउटसाइड बिजनेस मानी जाएगी. तो इट मीन्स फार्मूला बन जाएगा ऑपरेटिंग कैपिटल का इन दिस एग्जाम्पल टोटल कैपिटल माइनस कर लीजिए आप नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस लैंड एंड बिल्डिंग विच इज हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट एंड माइनस एडवांस विच इज गिवन फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड माइनस अवर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. तो दीज आर नॉट कंसीडर्ड फॉर ऑपरेटिंग कैपिटल. तो नाउ वी गेट तो रुपीज़ आपके लैक्स में ही चल रहे हैं. रुपीज़ आ रहे हैं लैक्स. वट इज टोटल कैपिटल ये आपने कैलकुलेट किया था 2400 लैक्स. नाउ जैसे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो को आपको मेंशन किए हैं 140 लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट 20 तो माइनस 140 माइनस 20 माइनस एडवांस गिवन फॉर प्लांट तो दिस इज 10 एंड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज 30 so minus 10 minus 30. So this will be operating capital of the company 2400 minus 160 and minus 40. This is 2200 lakhs. So now we can calculate economic value added. So what is the EVA? So net operating profit after tax आपने कैलकुलेट किया था 831 lakhs. Operating capital is 2200. And weighted average cost of capital we have calculated. So this one was 13.25%. 13.25%. So 2200 into 13.25%. This is 291.50 lakhs. So answer is economic value added in rupees. This is 539.50 lakhs. You can see which option is correct. So answer is our option number B. So in this lecture we have discussed case scenario based on economic value added. Further topics we will discuss in further lectures. वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.